सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 21 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे हमारे सामने राष्ट्रीय खबरों में दुखद खबर है। एक तो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और दूसरा राजधानी दिल्ली में रोहिणी अ, रोहिणी में एक छोटा सा आईईडी ब्लास्ट हुआ है। दोनों चीज़ें हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आगे बढ़ते चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। एज ट्रेड गैप विद यूएई आसियान वाइडन्स, इंडिया pauses talks with others. After a series of FTAs that have proved more beneficial to partner countries, India is adopting a more cautious negotiating strategy, temporarily pausing talks for trade pacts with smaller countries such as Oman and Peru. The Commerce Ministry is working on developing a fresh standard operating procedure aimed at addressing the lack of consistent and streamlined procedures for negotiations. अभी तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में बड़ी हलचल चल रही है भारत की। हर तरफ से कुछ न कुछ नया देखने को रोज मिल रहा है। The new SOP designed to serve as a template for negotiation of multilateral and bilateral trade agreements covers modern chapters in trade deals such as labor and environment. और नए SOPs तैयार करे जा रहे हैं। The review of negotiating strategy comes amid concerns over possible investment outflows, rapidly surging imports from FTA nations, and recognition of errors made when dealing with specific chapters in the FTAs. These errors have led to a surge in inflow of goods and that are not even produced in the partner country. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी मार्केट में बड़ा चेंजेस आते हैं, उसको अब फिर से रीअसेस करा जा रहा है। हम देखते हैं और की पॉइंट इसमें से विशेष तो नहीं है। ट्रेड गैप बिटवीन April 24 to September was against 2023 widened by 171%. Notably, but trade gap had jumped 55% between April and September 22. The Commerce and Industry Ministry has also initiated a review of ASEAN deal, pointing out that it did not produce the expected gains and has led to rising imports. और अब ज़्यादा imports हो रहे हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी हैं। The ASEAN trade deal signed during the UPA era has faced significant criticism due to widening trade deficit, particularly after COVID-19. The trade deficit with the region increased by a sharp 70% in FY23 compared to FY22. फिर से रिसर्च करा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि आसियान कंट्रीज़ कौन सी हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। टिमोर लेस्टे, which holds observer status, is on track to become its 11th member. The region remains a crucial trading partner for India, accounting for about 11% of country's global trade. हमारा आसियान देशों के साथ 11% है ट्रेड पूरा। Queries email, Secretary to the Ministry of Commerce, etc. etc. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से खबर आती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गिव्स नाफेड पोस्ट टू ओन ऑफिशियल्स, वीक लेटर इट गोज टू कोऑपरेशन. It's learned that Agriculture Ministry on order 2023 assigned additional charge of MD NAFED to Muktanand Agarwal, Joint Secretary to the Ministry. The order was issued a day after Ritesh Chauhan had demoted office as MD. The order was issued with approval of competent authority. In this case, the Agriculture Minister also said adding the order was also copied to NAFED and the Department of Personnel. एक अपॉइंटमेंट्स को लेके है, कुछ विशेष खबर नहीं थी। Water in common. Report of Global Commission on Economics of Water is a message to countries for better management of stress aquifers. Major assessment of hydrological systems has concluded that global water crisis could spiral out control if urgent remedial measures are not taken. Set up by Netherlands 22, the Global Commission on the Economics of Water draws on the findings of leading scientists
and other experts to arrive at a comprehensive understanding and management aquifer worldwide. The Commission report released last week that warns that more than half of the world's food production could be imperiled if countries do not find better ways to manage water resources. तो ये असल में बेसिकली संस्था है जो कि आपकी नीदरलैंड से ऑपरेट करती है। जैसे कि नाम में आप पढ़ पा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, कि पानी की संसाधनों को अगर हम कैसे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर पानी के संसाधनों का सही से इस्तेमाल समय रहते नहीं करा गया तो बहुत बड़ा प्रभाव फूड प्रोडक्शन पे पड़ सकता है, जो कि अल्टीमेटली हर किसी के दैनिक जीवन पे पड़ेगा और अल्टीमेटली पूरे देश पे पड़ेगा। आगे देखते हैं। द क्राइसिस को शेयर ऑफ 8% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और लगभग पूरे विश्व का 8% जीडीपी इस नुकसान में चला जाएगा बाय 2050, विद पुअर कंट्रीज फेसिंग 15% लॉस, और वहीं गरीब देश हैं वो 15% नुकसान उठाएंगे। द पैनल रिकॉन्स दैट द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर विल आउटस्ट्रिप supply by 40% by the end of decade. In fact, as the report underlines, a large part of third world is already water stressed. और जब तक ये रिपोर्ट अपनी बातें कह रही है तब तक लार्ज पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ऑलरेडी गरीब कंट्रीज़ हैं, वो पानी की समस्या से जूझ रही हैं। Several of the report conclusions have been issues of national conversation for more than a decade now, और हम जानते हैं ये सब बातें हर कोई जानता है। About 80% of waste water generated by industries worldwide is not recycled, और लगभग 80% वेस्ट वाटर जो कि हमारी इंडस्ट्रीज से निकल रहा है वो रिसाइकल नहीं हो रहा है। ये बात रिपोर्ट में बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई है कि 80% वेस्ट वाटर जो कि हमारी इंडस्ट्री से निकल रहा है वो रिसाइकल नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड कह रहे हैं ये, मतलब ग्लोबली कह रहे हैं, अकेले कोई एक देश के लिए नहीं कह रहे हैं। Despite the interconnectedness of water system, there is no global governance system for water. The UN has had only one water conference in past 50 साल, मतलब पिछले 50 साल में UN ने भी सिर्फ एक ही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करी है ऑर्गेनाइज। The Commission is a global pact to conserve water. For that happen, however, countries must tweak its finding of the context. For instance, the Commission slots India among those countries whose landmass supports water flow outside the national boundaries. This understanding should be qualified because interstate water disputes are major policy making challenge within India. बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही गलत बात है मगर रिपोर्ट अच्छी है। बहुत की इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए हमको वाटर कंजर्वेशन की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। अगला आर्टिकल है द डिजिटल वे फॉरवर्ड। Impact assessment studies can ensure digital public goods are accessible inclusively. मानसी केरिया और श्रुति वनगुरी जी कहती हैं, The adoption of Global Digital Compact at the UN Summit on September 22 officially marks the beginning of a period of global multi-stakeholder cooperation in digital governance में। It is a commitment by the 193-member UN General Assembly to ensure that design, use and governance of technology benefits all. It follows the multi-phase Universal Safeguard for Digital Public Infrastructure initiative. Launched in 1993 by the Office of the UN Secretary General Envoy on Technology, पब्लिक गवर्नेंस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बेहतर इस्तेमाल करने को लेके बात करी जा रही है। इंडिया थ्रू इट्स G20 प्रेसिडेंसी mainstream the idea of DPIs, Digital Public Infra, as an instrument to accelerate the pace of economic development. और भारत ने भी बताया कि हमने कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की मदद से भारत में ग्रोथ और अच्छी करी है। आधार एंड द हाईएस्ट वॉल्यूम डिजिटल आइडेंटिटी है सबसे बड़ी, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल डायलॉग ऑन DPIs। भारत हम जानते हैं कि कुछ ज़्यादा ही डिजिटाइज हो चुका है। अब इतनी तेज़ी से कोई देश नहीं हुआ है जिस तरीके से हम लोग आज UPI और ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत आसानी से कर लेते हैं।
बड़े बड़े यूरोपियन देश चौंक गए हैं कि ऐसा भारत में हो कैसे रहा है। As DPI and DPI type initiatives spread foundationally and sectorally in India, impact assessments can directly support policymakers not only to track success but also to guide design improvements and ensure that DPIs remain accessible, inclusive, and effective. Without such assessment, governments risk investing in infrastructure ecosystems that may not fully serve their intended purpose or worse, exacerbate existing inequalities. Initial evidence suggests that DPIs have catalyzed financial inclusion in India. Bank accounts for adults increased from 25% in 2008 to more than 80% in the past 6 years. With women owning 56% of these accounts, the value of digital transactions reached nearly 50% of India's nominal GDP. बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और भारत लीड कर रहा है इस समय DPIs को. One of the biggest hurdles in conducting impact assessments is the lack of data. Tempting as it can be, rely on familiar metrics such as number of people enrolled in Aadhaar, total number of transactions processed through UPI, or the number of Jan Dhan accounts. This data alone does not provide an adequate reflection of impact. दिक्कत देखिए, हमारे पास डेटा एग्जैक्टली है नहीं जिससे हम ये एक सही असेसमेंट कर पाएँ कि कितना इम्पैक्ट हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का हुआ है. क्या आप आधार डेटा लेंगे, क्या UPI ट्रांजैक्शन का डेटा लेंगे, या आप जनधन अकाउंट डेटा लेंगे? Data on socio-economic background of users, frequency of usage, or behavioral changes prompted by these systems are important. For instance, finding evidence for whether DPI-enabled lending increased or decreased systematic risk. Intersectional data is important to examine how demographic factors like gender, income and education. मतलब वही बात हो रही है कि डेटा का एस्टिमेट इतना आसान नहीं है, और अगर ज़रूरी क्यों है करना, क्योंकि अगर हमें पता लग जाएगा तो हम और वर्तमान में चल रहे समाज के ताने बाने को समझ पाएंगे. टू ओवरकम दी चैलेंजेस एंड मेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट्स रूटीन फॉर DPIs इन इंडिया, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, वी प्रपोज 3Ds: डिज़ाइन, डेटा एंड डायलॉग. डिज़ाइन पहला, दूसरा डेटा, तीसरा डायलॉग. द फर्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेट इम्पैक्ट असेसमेंट मैकेनिज्म्स इन द डिज़ाइन ऑफ DPIs, मच लाइक प्राइवेसी और सिक्योरिटी. पहले तो आप जो इम्पैक्ट असेसमेंट चाह रहे हैं उससे आप DPIs के ना रूप में ही उसे डिज़ाइन करें. सिस्टम शुड बी डिज़ाइन विद एबिलिटी टू कलेक्ट डेटा दैट एनेबल इम्पैक्ट असेसमेंट्स. सिस्टम को डिज़ाइन ही वैसे करिए आप. फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस फीडबैक लूप. द सेकेंड इज टू मेक डेटा अवेलेबल थ्रू ट्रस्टेड एंड वेल गवर्न मैकेनिज्म्स. डेटा, सेकेंड पॉइंट डेटा है यहाँ पे आके, वो डेटा ट्रस्टेड सोर्सेज से आया हमारा. Most government agencies are on the side of minimalization, which can compromise quality of assessments or data use. Building trust with citizens and the private sector through well-designed data collection systems can make high-quality assessments possible. अगर हम और अच्छे सिस्टम बना के रखेंगे तभी हम डेटा ले पाएंगे. Technical designs will also be important for data discoverability and use. Finally, fostering a dialogue among stakeholders and building a community which involves third parties as असेसमेंट एजेंसीज. बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर और चीज़ों को बेहतर करना है तो रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे. यहाँ पे हमने क्या जाना, क्या सॉल्यूशन है इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ को बेहतर करने का. 3D सॉल्यूशन बताया उन्होंने. पहला है डिज़ाइन, दूसरा है डेटा, तीसरा है डायलॉग. है ना. असेसमेंट को ऐसे डिज़ाइन करा जाए कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो, ताकि वो बेहतर तरीके से सिस्टम के साथ रह के असेसमेंट कर पाए. डेटा ऑथेंटिक सोर्सेज से मिले, और गवर्नमेंट का भी डेटा इतना ऑथेंटिक नहीं होता है क्योंकि वो करेक्ट जिस हिसाब से करा जाता है, कम बढ़ती दिखाया जाता है, इट इज़ इरेगुलर. और डायलॉग, एक ट्रस्ट बिल्डअप करा जाए यूज़र्स और इम्पैक्ट असेसमेंट के बीच में, ताकि हम और बेहतर रिफॉर्म्स ला पाएँ इस क्षेत्र में और DPIs के इम्पैक्ट को समझ पाएँ, जिसमें भारत इस समय बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर रहा है.
हमने इस आर्टिकल में क्या जाना था, इस आर्टिकल में कि नीदरलैंड से ऑपरेट हो रही एक संस्था ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर ने ये बताया है कि वाटर कंजर्वेशन को लेके ऑफिशियली तो कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। यूएन में आखिरी बार 50 साल पहले एक बैठक हुई थी पर्टिकुलरली वाटर कंजर्वेशन को लेके। इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट वाटर 80% 80% रिसाइकल नहीं हो रहा है, डायरेक्टली डिस्पेंस हो जा रहा है बॉडीज़, ओशन बॉडीज़ में। और नेशन स्टेट्स ये जानते हैं कि अगर वाटर कंजर्वेशन पे, इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या आ रहा है कि अगर आपने वाटर पे ध्यान नहीं दिया तो उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पे सबसे पहले तो पड़ेगा फूड प्रोडक्शन पे। और अगर फूड प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक, समाज में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी और इकोनॉमिक मार्केट्स क्रम्बल हो जाएंगी। मार्केट्स जो ऊपर जा रही हैं वो नीचे आ जाएंगी। इन्फ्लेशन को हमें बढ़ता देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा डोमेस्टिक मार्केट से ये असर धीरे धीरे चला जाएगा कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट में चला जाएगा। ग्लोबल मार्केट में ये असर देखने को चला जाएगा, है ना। देर आर मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट्स हेयर, यही इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन पे पड़ेगा। अब देखिए ना, एक तो फूड प्रोडक्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लैंड पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप वगैरह पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा फिश प्रोडक्शन भी तो पड़ेगा। अगर वाटर सोर्सेज कंटेमिनेटेड हो जाएंगे तो फिश प्रोडक्शन पे पड़ेगा। मतलब ओवरऑल पूरी फूड चेन, जो हमारी सप्लाई चेन है, फूड की सप्लाई चेन, वो इम्पैक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और करंट अफेयर्स की ओर। इंडोनेशिया में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, प्रबोव सुबियांतो। और अभी हाल ही में थाईलैंड में भी चुने गई हैं शीनावाट्रा, पेट्रोनास शीनावाट्रा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पांडा को लेके खबर है। चाइना में होती है, चाइना में क्या होती है, चाइना करता है पांडा डिप्लोमेसी। और ये बहुत ही कामयाब डिप्लोमेसी है। जहाँ जहाँ पे चाइना ने पांडा डिप्लोमेसी के अंतर्गत पांडा भेजे हैं, उन देशों में किसी न किसी कारण से व्यापार चाइना का बढ़ा है। ये ब्लूमबर्ग का डेटा है, बड़ा ही है। इन्वेस्टमेंट से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बढ़ा है। क्या है पांडा डिप्लोमेसी? चाइना क्यों दूसरों के अपने पांडा भेज रहा है, और ग्लोबली भेजता है चाइना, बहुत देशों के भेजे हुए हैं। क्यों भेज रहा है पांडा, देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल। Panda exchanges like the one that was sent 2 years to Washington National Zoo this week are governed by closely held contracts। अच्छा, ये ऐसे नहीं भेजता है, बहुत ही सख्त नियम होते हैं चाइना के। आप कैसे रखोगे, आप कितना बजट है आपके पास, कितने, ये बजट नहीं कि बजट इतने दिन का है जू के पास, 1 साल तक सस्टेन कैसे करोगे, 2 साल तक सस्टेन कैसे करोगे, 5 साल की क्या पॉलिसी है जू के पास, क्या इन्हें टेक केयर कर पाओगे, आपकी हेल्थ वेटनरी टीम कितनी एक्सपर्टीज़ वाली है, सब कुछ चाइना जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये सब कुछ देखता है, तब अपने चाइना पांडा साहब के यहाँ भेजता है। Watch what you tell journalists. The arrival of pandas in Washington and San Diego were highly choreographed media events, but zoo administration have agreed to limit what they tell journalists। और ये भी क्लियर रखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें रखी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपयों में हुआ है, ये टोटली कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ठीक है।
डोंट टॉक अबाउट द मनी, जूस पे अप टू $1.1 बिलियन अ ईयर टू रेंट, ये किराए पे है, रेंट देना पड़ेगा चाइना को आपको, पेयर्स ऑफ पांडा। अच्छा ये क्या बताइए, $1.1 बिलियन दे के मैं ये पांडा क्यों लाऊं अपने जू में? क्योंकि ये देखा गया है कि जिन जिन जूज़ में पांडा होते हैं उन जूज़ की अर्निंग बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा टिकट लेते हैं, देखने के लिए आते हैं। बहुत देशों में, मेरे ख्याल से मलेशिया का मैं देख रहा था एक बार, मैं नाम जगह का भूल रहा हूँ, या इंडोनेशिया ही था, वहाँ पे एक ज़ू था, उनका थोड़ा सा डिक्लाइन चल रहा था, बढ़िया ज़ू था, मतलब बिल्कुल प्रीमियम वाला ज़ू, प्रीमियम। मगर फिर उनके दिमाग में किसी का आइडिया आया ज़ू अथॉरिटी के कि पांडा ले आते हैं, एक काम करते हैं, चाइना से पांडा ले आया सेम कॉन्ट्रैक्ट पे, ये शर्तें रहेंगी, इतना तो खर्चा करेंगे वगैरह वगैरह, और ज़ू की इनकम एकदम मतलब उछाल मार गई, क्योंकि लोग पांडा को देखने के लिए आते हैं, उन्हें पसंद होता है। वाशिंगटन नेशनल ज़ू में भी यही बात होगी, है ना, जूस रेंट देंगे इसका पूरे साल का, पांडा का। टू रेज मनी जूस कोट डोनेशंस फ्रॉम एवरीडे पीपल एंड बिग टिकट फिलैंथ्रोपिस्ट, चाइना रिटेन्स ओनरशिप ऑफ द पांडा, और अच्छा ओनरशिप चाइना के पास रहेगी, एंड जूस पे फॉर द राइट टू डिस्प्ले एंड ब्रीड देम फॉर अ डेकेड। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ओनर चाइना रहेगा, जू उसको पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब चाइना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एसोसिएशन प्रोहिबिट जूस फ्रॉम डिस्कसिंग द डील इन दैट वे। कमर्शियल टर्म्स जैसे लीज रेंटल लोन एग्रीमेंट वगैरह ये आप खुल के नहीं ला सकते ओपन मार्केट में। Zoos have agreed to pay for Chinese panda exports to travel to US regularly to give out advice, including airfare, hotels, and daily stipend of $100 to $100 per person। और इस बीच चाइना के इंस्पेक्शन टीम, चाइना के वेटनरियंस, चाइना के जू डिपार्टमेंट के लोग जब चाहे आ जा सकते, उनको देख सकते हैं वगैरह वगैरह तमाम बातें। मैं ओवरऑल बात यहाँ पे निकल के जो मुद्दे की आ रही है, 100 बातों की बात कि चाइना डिप्लोमेसी क्यों हो रही है। चाइना भी इस डिप्लोमेसी के आड़ में दोस्ती करके और ट्रेड बढ़ा लेता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे चाइना ने डिप्लोमेसी करी है पांडा की, वहाँ पे पता नहीं अचानक से चाइना के ट्रेड बढ़ गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरी बात है, जो जूज़ हैं उनकी भी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए जूज़ वहाँ पे कोई ऐसे नहीं होते हैं कि सरकारी खर्चे पूरे चल रहे हैं, वहाँ पे उनको अपना खर्चा खुद निकालना पड़ता है, स्टाफ से लेके वेटनरी टीम से लेके जानवरों के इलाज का। तो जूस को हम चिंता हमेशा रहती है कि वह अपने खर्चे निकालते रहें। इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी डिप्लोमेसी, एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी अच्छी बात है, इससे अच्छा मैसेज ही जाता है। अगला आर्टिकल है सोलर इम्पोर्ट्स कुड सोर टू 30 बिलियन एज इंडिया टारगेट्स 2030 रिन्यूएबल गोल्स। भारत लीड करना चाह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। India's ambitious goal of installing 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 may drive the country's annual solar equipment imports to around $30 billion due to heavy reliance on Chinese goods. The Global Trade Research Initiative has said the think tank has emphasized on the need for India to develop a self-reliant solar manufacturing ecosystem. भारत भी देख रहा है, अभी भी फ़िलहाल चाइना इंपोर्ट ही करता है इंडिया, ठीक है ना, मेजर सोलर इक्विपमेंट्स, सोलर वेफर्स, तमाम चीज़ें वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन बहुत कम करता है। Earlier this month, Indian Express has reported that India's clean energy manufacturing is experiencing a detrimental impact from Chinese predatory pricing, which is undermining the country's efforts to promote its domestic manufacturing. डोमेस्टिक में बिल्कुल हमारी कम चल रही है, जितने भी कारोबारी हैं वो सब इंपोर्ट करना पसंद करते हैं चाइना से ही। The report said that US had advised India to expand and protect its clean energy manufacturing sector. US ने भी इशारा करा था कि अगर आप क्लीन एनर्जी में भी डिपेंडेंट हो जाओगे चाइना के ऊपर तो भैया सुधर जाओ। India has added 15 gigawatts of solar capacity in 2024, bringing total 90.8 gigawatt by September. और तमाम बातें करी गई यहाँ पे, आंकड़े दिए हुए हैं। Nearly 90% of India's solar manufacturing involves assembling modules from imported cells with only 15% local value addition। मतलब सिर्फ 15% का हमारा खुद का लोकल वैल्यू एडिशन है, उसका बचा बाकी जो है सब इम्पोर्टेड है। It added that only few Indian companies manufacture solar cells at a commercial scale and non-produce solar cells and none produce solar cell from scratch using domestic materials.
बस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। The report stated that China remains largest supplier of solar equipments, followed by Vietnam, Malaysia, and Thailand. To reduce dependency on China, India has imposed custom duties of 40% on solar modules and 25% on solar cells. However, imports from ASEAN countries are exempt from these duties under the Indian ASEAN Free Trade Agreement. तो भले हमने यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाने की बात करी हुई है, मगर वो कहीं ना कहीं वेव ऑफ हो जाती है आसियान एग्रीमेंट के अंतर्गत। GTRI recommended several steps to boost domestic manufacturing, including investments in upstream solar production, expanding the scope of PLI scheme, and creating a skilled workforce. भारत को अपने वर्कफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और सोलर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। अगली खबर आती है ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र से। अप्रैल सितंबर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स की 12% हुई है, 2 व्हीलर्स की 16% हुई है, कमर्शियल व्हीकल्स की 12% हुई है और 3 व्हीलर्स ऑटो की 1% हुई है एक्सपोर्ट। और हमारे मेन मार्केट्स कौन सी लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है। बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व टू ईट स्टार्च, व्हाई दैट मैटर्स। एज सून एज स्टार्च, वेदर it be in the form of boiled rice, French fries, or momos. Either the human mouth, an enzyme in saliva starts breaking it down. This enzyme known as amylase की बात हो रही है, was critical for human evolution, helping the species adapt changing food supply. Two new studies, one published last week in journal Science and the other published last month in Nature, दो शोध आपके पब्लिश हुए रिसर्च have revealed that our ancestors began carrying more amylase genes in two major waves. The first one occurred several 100,000 years ago. Amylase बहुत ही यूजफुल एंजाइम है। अब 1960 में साइंटिस्ट ने उसकी खोज करी थी। Produce some people with extra amylase in the saliva, but it has only been in the past few years that researchers have been able to zero down on the amylase genes. इसका अध्ययन की बात हो रही है। Both studies cataloged a wide range of amylase copies in people's DNA. Some had a single amylase gene on each copy of chromosome, whereas most people had many more. तो किसी में इसके जीन ज़्यादा हैं, किसी में सिंगल कॉपी, किसी में ज़्यादा कॉपीज़ हैं। And these numbers were in stark contrast to even the closest existing species to human. और ये एक चिंपैंजी में भी देखा गया। तो इसी का अध्ययन करा वैज्ञानिकों द्वारा। कैसे ये पाए जाते हैं? दिस इज़ बिकॉज प्रायर टू द एडवेंट ऑफ कुकिंग, खाना वाना बनाने से पहले जब हम लोगों ने खोज करी थी खाना बनाना, पकाना, गर्म करना, ह्यूमंस लाइक डिड नॉट कंज्यूम स्टार्च रिच प्लांट्स विच वुड हैव बीन थॉट ऑफ टू च्यू एंड डाइजेस्ट। That said, studies found no evidence that hunter-gatherers gained any evolutionary advantage over having extra amylase genes. This changed drastically about 12,000 years ago. It was then at the end of the last ice age that number of societies began domesticating crops including starch-rich foods like wheat, barley and potatoes. और ऐसे ही हमने अपना खान पान चेंज करा और हम स्टार्च रिच फूड की तरफ चले क्योंकि उसे ईजिली डाइजेस्ट हम कर सकते हैं। Speculation for future. Omer Grockman, a genetic scientist at the University at Buffalo who led the science study, speculated that people today who have fewer amylase genes may be more vulnerable to disease like diabetes that are fueled by starch-heavy modern diet. और जिन लोगों में amylase जीन्स की कमी होगी वो ज़्यादा प्रोन हैं बड़ी बीमारियों को लेके, डायबिटीज़ वगैरह को लेके भी। इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। और करंट अफेयर्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।